Hello everyone, hope you all are doing well since your unit tests are approaching. So, this is the high time to revise and practice all your subjects for your first unit test of the session 2021. So, here I am with the second revision of chapter 1 of maths, number system, and today's topic of my revision is rationalization. I hope you all know what is rationalization, and if you have any doubt, just watch the previous lecture of chapter 1 based on rationalization and then revert back. So let's begin. So today in this presentation, I have included some solved questions from different books based on rationalization, and I would like you people to do these questions yourself, and so that you got to know about different types of questions which could come based on rationalization. So here is the question number 1. Find the values of a and b if 3 plus root 2 by 3 minus root 2 is equal to a plus b root 2. So we have to solve this question by rationalization since there is an irrational denominator. So first we'll change it into rational denominator. You know what is rationalization? Multiplying the numerator and denominator by the digits which are there in the denominator but with the opposite sign. The reason for the opposite sign is क्या है हमारा मकसद है to bring these two terms in the form of a square minus b square, because जब हमारा square होगा तो हमारा under root हट जाएगा. That's why we do such kind of thing, क्योंकि हमें ultimately हमारा aim होता है कि हमारा denominator हमको a square minus b square की form में लेके आना है. So here your denominator is 3 minus root 2. So the rationalizing factor would be 3 plus root 2. So we will multiply this 3 plus root 2 in both numerator and denominator. Now 3 plus root 2 into 3 plus root 2 is 3 plus root 2 whole square, and 3 minus root 2, 3 plus root 2, this is in the form a minus b and a plus b. So we will write it as a square minus b square, where your a is 3 and b is root 2. Now we will open the numerator by using the identity a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. So a square means 3 square, which is equal to 9. B square means root 2 square, which is equal to 2, plus 2ab, 2 into 3 into root 2. And नीचे हो जाएगा 3 का square 9 minus root 2 square is 2. Since the root and square would cancelled, now this is 9 plus 2 plus 6 root 2 by 7. और वी कैन राइट इट एज 11 प्लस 6 रूट 2 बाय 7. ये हमारा रैशनलाइज करने के बाद आ गया. अब हमें ये इस फॉर्म में चाहिए a प्लस बी रूट 2. तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे. सो वी कैन राइट इट एज 11 बाय 7 प्लस 6 रूट 2 बाय 7. वी कैन राइट इट एज ओके. हमने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, कंबाइंड था, इसको अलग अलग कर लिया. नाउ दिस इज इन द फॉर्म a प्लस बी रूट 2, एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट दैट आर a is 11 by 7 and b is 6 by 7. So which is your answer? Question number 2. If root 2 is 1.414, root 3 is 1.732, root 5 is 2.236 and root 6 is 2.449, find the value of this term. See, again I would suggest to people that since there are irrational denominators, so every term we will rationalize separately. तीनों को हमें rationalize करना है. Non rationalizing factors क्या होंगे? 2 minus root 3. So here the rationalizing factor would be 2 plus root 3. Here 2 plus root 3. So rationalizing factor would be 2 minus root 3. यहाँ पे root 3 plus 1, so the rationalizing factor would be root 3 minus 1. So just multiply. यहाँ पे हमने 2 plus root 3 से ऊपर नीचे करा, यहाँ पे 2 minus root 3 से किया, और यहाँ root 3 minus 1 से किया. So what would come? यहाँ पे हो जाएगा ये 2 plus root 3 का square, यहाँ पे 2 minus root 3 का square, और यहाँ पे root 3 minus 1 का whole square. और ये सब कैसे खुलेंगे? ये खुलेगा a plus b whole square, ये a minus b whole square, और ये भी a minus b whole square. ओके और नीचे सब में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ओपन करिए पूरा ऐसे, देन यू विल ऑब्जर्व
ये आ जाएगा 4+3 प्लस 4√3, यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 4+3 माइनस 4√3 प्लस 4√3 एंड माइनस 4√3 वुड गेट कैंसल्ड, और यहाँ पर ये आएगा. देन सॉल्व इट फर्दर, यू विल गेट this 16 minus √3, and √3 का value is given to you in question 1.732. So you will subtract this value of √3 from 16 and you will get this answer 14.268. So this is how these questions are being done. Third question, if your x is √2 plus 1 by √2 minus 1 and y is √2 minus 1 by √2 plus 1, find the value of x square plus y square plus xy. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को रैशनलाइज करेंगे और y को रैशनलाइज करेंगे. x को रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, ऑपोजिट साइन ना, √2 plus 1, सी √2 plus 1, और y को रैशनलाइज करने के लिए हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2 minus 1, सी √2 minus 1. तो हम इन्हें रैशनलाइज करेंगे, ये √2 plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी ओपन्ड बाय द आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर. सी नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर a plus b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सॉल्व इट फर्दर, यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर से और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से. सॉल्व इट फर्दर, ये दोनों आ गए. अब इन्होंने अलग तरीके से किया है, इन्होंने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होता है, बेसिकली दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, लेकिन अगर इसमें एक एक्स वाई और लगेगा तब ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होगा. तो इन्होंने क्या लिखा है, इसको एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई की फॉर्म में सॉल्व किया है. बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक्स को स्क्वायर कर लो, बिकॉज यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर ना. सो इसको, ये हमारा एक्स आ गया, इसको होल स्क्वायर कर लो. रिमेंबर जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो ये ओपन कैसे होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर. a आपका 3 होगा और b आपका 2√2 होगा. सिमिलरली वाई स्क्वायर चाहिए, ये हमारा y आ गया, तो इसको होल स्क्वायर कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर से, a हमारा 3 होगा और b हमारा 2√2 होगा. Then xy means 3 plus 2√2 multiply by 3 minus 2√2. तो ये हमारे फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब हम इन्हें इस फॉर्म में मल्टीप्लाई x इंटू वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर. फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपने एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया, वाई स्क्वायर भी निकाल लिया और एक्स वाई निकाल लिया, तीनों को प्लस में रखिएगा, यू विल गेट 35 आंसर. ओके, नेक्स्ट, if x is equal to 5 minus √21 by 2, prove that x cube plus 1 by x cube minus 5 into x square plus 1 by x square plus x plus 1 by x is equal to 0. सी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है बट इट्स वेरी सिंपल. हमें x गिवन है, हमने देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह 1 by x चाहिए, तो हम सबसे पहले 1 by x निकालेंगे. 1 by x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 by x हो जाएगा आपका 2 by 5 माइनस √21. सबसे पहले हम इस 1 by x को रैशनलाइज करेंगे. तो हमने रैशनलाइज किया, 5 प्लस √21 वुड बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर. ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 5 प्लस √21, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इज 25, √21 का स्क्वायर इज 21, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर ही आ गया. सॉल्व इट, यू विल गेट 5 प्लस √21 बाई 2. अब हम देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स भी चाहिए आपको, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो हम ये तीनों निकालेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे x प्लस 1 बाई एक्स. तो x हमारा था 5 माइनस √21 बाई 2, 1 बाई एक्स हमने यहाँ से निकाल लिया, 5 प्लस √21 बाई 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे. सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, यानी x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5. अब हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये जो हमने निकाला है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे ऑन बोथ द साइड्स. तो ये कैसे खुलेगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खुलेगा. तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे. x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25, हमें ये चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांट, तो इस 2 को उधर ले जाइए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23. सेम मैनर में हम x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालेंगे.
हमारे को पता है, हमने फाइंड आउट किया x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। नाउ ये हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब से, तो ये हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125। ये x कैंसिल हो गए, ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। प्लस 3x प्लस 1/x क्या था हमारा इक्वल टू 5 था ना, तो हमने 5 वैल्यू पुट कर दी, तो 3 इंटू 5 इज 15। इस 15 को हम उधर ले गए यानी बचा क्या 110, तो x क्यूब प्लस 1/x इक्वल एक्स क्यूब इक्वल टू 110। अब इसकी जगह हम एक्सप्रेशन में 110 लिखेंगे, माइनस 5 इंटू इसकी जगह हमने पीछे फाइंड आउट किया था 23 था, प्लस इसकी जगह 5 लिखेंगे एंड वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट 0 which is equal to our RHS. So children, such questions we do like this way. Next is express 3 upon root 3 minus root 2 plus root 5 with rational denominator, means you have to rationalize the denominator. See, अब जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं तो आप डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करिए 2 टर्म का पेयर बना लीजिए, वो आपका a की तरह एक्ट करेगा और एक टर्म आपकी b हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट 3 माइनस रूट 2 का मैंने पेयर बना लिया प्लस रूट 5, सो ये हो गया a प्लस b की फॉर्म में। तो अब मुझे a माइनस बी चाहिए ना इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए, तो मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2 विच इज़ माई a माइनस रूट 5, उसी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे मेरा a क्या है पूरा रूट 3 माइनस रूट 2, सो रूट 3 माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। रिमेंबर चिल्ड्रन, अब रूट 3 माइनस रूट 2 स्क्वायर को मैं कैसे ओपन करूंगी, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर यानी रूट 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 5। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 माइनस 5। अब ये 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 0, ये तो कैंसिल हो गए टर्म्स, यहाँ सिर्फ क्या बचा डिनोमिनेटर में माइनस 2 रूट 6। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर, मैंने किया बट स्टिल मेरे पास एक इरेशनल टर्म है, तो अब फिर से हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, लेकिन इस बार हमें क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ओनली रूट 6, तो मैं उसे रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब रूट 6 से जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 3 तो एज इट इज आ गया, नो रूट 3 इंटू रूट 6 इक्वल टू रूट 18, रूट 2 इंटू रूट 6 इक्वल टू रूट 12, रूट 5 इंटू रूट 6 इक्वल टू रूट 30 और नीचे आएगा माइनस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6, तो नीचे आ गया मेरे पास माइनस 12। यहाँ 3 और 12 कैंसिल हो गए, माइनस 4। अब रैशनलाइज तो हो गया डिनोमिनेटर, लेकिन आपको पता है कि रैशनल नंबर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इस नेगेटिव साइन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइंस जो है चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज ये 3 रूट 2 नेगेटिव हो गया, 2 रूट 3 पॉजिटिव हो गया और माइनस रूट 30 भी पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो चिल्ड्रन, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, आप इनको खुद प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो मैंने वीडियो में दिखाए हैं, उन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चंस है, तो इन्हें सॉल्व करने में आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट फिर भी इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। Question number 1, if being given that root 2 is 1.414, root 3 is 1.732, root 5 is 2.2336 and root 10 is 3.162, find the value to 3 places of decimals of the following. The question is root 10 minus root 5 by root 2. Second is find the rational numbers a and b such that 5 plus 2 root 3
बाय 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3। दोनों में आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करिए। Question number 3. Simplify 2 root 6 by root 2 plus root 3 plus 6 root 2 by root 6 plus root 3 minus 8 root 3 by root 6 plus root 2. I suggest कि तीनों टर्म्स को आप सेपरेटली रैशनलाइज करिए। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 2 माइनस रूट 3, इसका हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3, इसका हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2। Fourth, find the values of a and b if 7 plus 3 root 5 by 3 plus root 5 minus 7 minus 3 root 5 by 3 minus root 5 is equal to a plus b root 5। सी यहाँ पे ऑलरेडी ये a plus b और a minus b की फॉर्म में है, तो आपको रैशनलाइज करने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप इसका सीधे सीधे LCM ले लीजिए, क्योंकि जब आप LCM लोगे तब ये a plus b इंटू a minus b हो जाएगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आप LCM लीजिए। LCM जब आप लेंगे तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 7 प्लस 3 रूट 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 माइनस 3 रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रेन। लेकिन ध्यान रखना ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन होगी इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे उसमें ब्रैकेट लगाना, और जब आप ब्रैकेट खोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। सो टेक केयर एट दैट स्टेप। Question number 5. If a is equal to root 3 minus root 2 by root 3 plus root 2 and b is equal to root 3 plus root 2 by root 3 minus root 2, find the value of a square plus b square minus 5ab। पहले इन्हें आप रैशनलाइज करिए, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। ओके, नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 5 बताया था आपको इस प्रेजेंटेशन में सॉल्व, आप उसे पैटर्न पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो इसमें सबसे पहले आप 1 बाई एक्स निकालिए, फिर x प्लस 1 बाई एक्स निकालिए और फिर दोनों साइड्स पे क्यूब कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में आपको समझाया है अभी। सो चिल्ड्रन दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन हो गए, 7 प्रैक्टिस के और 5 जो सॉल्व मैंने आपको दिखाया है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से अपने मैथ्स नोटबुक में करिए रिविजन वाइज। ओके, फर्स्ट मैंने रिविजन 1 आपको दिया था वो करिए, देन रिविजन 2 आप सॉल्व करिए। सो if you will solve all these questions you will gain a confidence, and I hope that you are doing a good practice of your syllabus. Thank you.